Good morning, students. Welcome back to your online sessions of Science Class 10. I hope you and your family will be safe in these pandemic situations. So I request you to unnecessary just avoid to go outside your homes if it should be necessary. And use the full face of mask, use the sanitizers always be with you. And when you are in homes, always be within 2-3 hours, always be wash your hands within 20 seconds. So I request you to stay home, stay safe. Now, we're discussing about our topics. In the previous chapter of the parts of metals and non-metals, we generally discuss different type of extraction of process of metals, as well as what is called metal, what is called non-metal, what is called semi-metalloids, how they can be formed, the metal, how they can be non-metal formed, what are their oxides. These are generally forms we have discussing in the previous lectures. Also, we're discussing about their extraction. Now today we're discussing about the specific term that is called compound, ionic compound. Generally metals having or non-metals having a specific properties in which they generally lose the electrons or receive the electrons. That is the main tendency of the metals and non-metals. Metal always we release the electrons as a part of their outer orbit, while the non-metallic substance always they accept the electrons as well as their outer orbit. So the outer orbit having a 1, 2, 3 always have tendency to lose the electrons, so they gain the properties of metal. While the outer orbit is 5, 6, 7, they always be tendency to accept the electrons, so this is called as a non-metallic substances. So how the ionic compounds that can be formed? So first, the compound that formed by the transfer of electrons from a specific part of metal to non-metal, that is called as an ionic compound. So transferring of the electrons from the metals to non-metals, generally that is considered as a form of the ionic compounds. It is also called as a part of the electrocovalent compound. इसको आप electrocovalent compound भी कह सकते हो, ionic compound भी कह सकते हैं, because ये जनरली इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए. अगर कोई भी मेटालिक सब्सटेंसेस या कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है मेटल और नॉन मेटल के फॉर्म में, तो वो एक स्पेसिफिक बॉन्ड को क्रिएट करता है जिसको हम आयोनिक बॉन्ड या तो हम इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड के फॉर्म से कंसीडर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है जैसे सोडियम. सोडियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं दैट इज 11. The electronic configuration of sodium is 11. तो 11 को अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अरेंजमेंट अगर करेंगे तो 2, 8 और 1 होता है. द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम दैट इज 2, 8, 1. पहले ऑर्बिट में उसका 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और लास्ट में 1 ऐसे इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन होता है. सो सोडियम का आउटर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसकी टेंडेंसी होती है एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की. एक इलेक्ट्रॉन को अगर वो लॉस करेगा तो इट विल कन्वर्ट इट इनटू द फॉर्म ऑफ आयन. Na+ का आयन को कंसीडर होता है. यानी सोडियम एलिमेंट Na केवल आप लिखते हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ सोडियम एलिमेंट दैट इज 2, 8, 1. अगर इसमें से Na++ इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो Na+ हो जाएगा 2 और 8 का, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है. सिमिलरली अगर एटॉमिक नंबर आप क्लोरीन का देखते हैं तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो उसका आउटर कन्फिगरेशन जो इलेक्ट्रॉनिक होता है वो होता है 2, 8 और 7. तो उसके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो इसकी टेंडेंसी होती है एक इलेक्ट्रॉन को लेस एक्सेप्ट करने की. तो क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन 2, 8, 7 प्लस इलेक्ट्रॉन वो क्या बनेगा? Cl माइनस, यानी कि क्लोरीन का आयन बनेगा 2, 8, 8. सो सोडियम का जो आयन है Na+ और क्लोरीन का जो आयन है Cl माइनस, ये दोनों क्या होते हैं? जिसको एनियन कहते हैं. सोडियम का एनियन और कैल्शियम आपका जो क्लोरीन का एनियन, दोनों जब एक दूसरे का सिम्प्लीमेंटेड होता है प्लस और नेगेटिव चार्ज के साथ, तो ये अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर को, जिसके वजह से दोनों के बीच में एक हैवीली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है अट्रैक्शन फोर्स जिसको कहते हैं वो जनरेटेड होती है. दोनों के बीच एक स्पेसिफिक बॉन्ड बनता है जिसको हम आयनिक बॉन्ड से फॉर्मेशन कह सकते हैं. सो Na+ प्लस Cl माइनस, इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन से आपको NaCl कॉमन सॉल्ट मिलता है. सो ये जो सोडियम क्लोराइड होता है इट्स ग्रुप ऑफ ऑपोजिट चार्ज ऑफ आयन, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और एक स्पेसिफिक बॉन्ड को क्रिएट करेंगे तो हमेशा उसका आयनिक बॉन्ड से क्रिएशन करते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है. जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है. मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर भी इस तरह का आयनिक बॉन्ड का कन्फिगरेशन होता है. सो मैग्नीशियम का जो फॉर्मेशन आप देखोगे एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का 12 होता है, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है दैट इज 2, 8 और 2. यानी कि लास्ट का जो आउटर ऑर्बिट होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. लास्ट का जो आउटर ऑर्बिट है उसके अंदर उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो ऑलमोस्ट Mg जो है 2, 8, 2 वो क्या करेगा? Mg+2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो उसका आउटर ऑर्बिट हो जाएगा 2, 8 का. ओके, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने पे. सिमिलरली क्लोरीन जो है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो अगर 2 मॉलिक्यूल्स क्लोरीन के अगर आप ऐड करते हैं तो आउटर ऑर्बिट में 1 + 1 2 इलेक्ट्रॉन्स की उसकी जरूरत होगी. तो ये जो Mg जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो क्लोरीन क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, इसलिए Mg
Cl2 मैग्नीशियम क्लोराइड जो यहाँ पे फॉर्म होता है। तो ऐसे में अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से अगर आप इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर दें मेटल से नॉन मेटालिक टर्म्स के हिसाब में, तो वो हमेशा एक इलेक्ट्रोस्पेसिफिक फॉर्म जो है आयनिक बॉन्ड को क्रिएट करता है। अभी आयनिक बॉन्ड्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। आयनिक बॉन्ड की सर्टेन प्रॉपर्टीज, इसमें 4 प्रॉपर्टीज हमने लिखी है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, जिसमें पहली है फिजिकल नेचर, दूसरी है उसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी सॉलिबिलिटी, चौथी है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। These are the 4 physical properties that having an ionic compound. इसमें पहला डिस्कशन करते हैं फिजिकल नेचर। Generally ionic compounds are in a form of solid and they are very hard because they have very strong forces as a part of positive and negative charge. फिजिकल नेचर अगर आप डिस्कशन करते हैं आयनिक कंपाउंड का, तो आयनिक कंपाउंड्स फिजिकली नेचर के हिसाब से सॉलिड फॉर्म में होते हैं, काफ़ी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि इनके बीच के अंदर जो एटम्स का जो फॉर्मेशन होता है उनके बीच में स्ट्रॉन्ग एट्रैक्टिव फोर्स होता है, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बने रहते हैं। तो दिस आर द सब्सटेंसेस ऑफ आयनिक कंपाउंड। इस फिजिकल नेचर्स आर वेरी ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू द पीसेस व्हेन यू अप्लाई द प्रेशर। अगर आप ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे ऐसे सब्सटेंसेस पे तो वो क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट इज द फिजिकल नेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड। दूसरा है आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जनरली a large amount of heat is required to break this type of the ionic compound. अगर ionic compound के particles को break करना है तो generally required a very high amount of energy। तो ये जो energy strong interaction force होता है उसको break करने के लिए हमें ज़्यादा energy का use करना पड़ता है। इसलिए ऐसे substances जो होते हैं ionic compound के, उसके physical nature में जो उसका boiling point और melting point होता है वो काफ़ी high होता है। They are very high as a part of physical melting point and boiling point। तीसरा है जिसको हम कहते हैं सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी यानी कि जो हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोकॉवलेंट यानी कि आयनिक कंपाउंड। तो इलेक्ट्रोकॉवलेंट जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जनरली ये सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। तो जनरली दिस टाइप ऑफ द आयनिक कंपाउंड जिसको इलेक्ट्रोकॉवलेंट कंपाउंड भी आप कहते हैं, विच इज इजीली सॉल्युबल इनटू द पोलर कंपाउंड। पोलर कंपाउंड यानी कि वाटर जो सब्सटेंसेस है उसके अंदर इजीली सॉल्युबल है। लेकिन जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जिसमें आप कैरोसिन है, पेट्रोल है, अल्कोहल है, ऐसे सब्सटेंसेस में ये इजीली डिसॉल्व नहीं हो सकता, तो देयर सॉल्युबिलिटी कैन नॉट बी सीन इनटू द नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। फोर्थ जो है उसको हम कहते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करता है। सो द कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन विच इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। अभी आप आयनिक कंपाउंड्स में अगर देखेंगे तो आयनिक कंपाउंड्स के अंदर उसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहाँ पे होता है, जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वहीं पे इलेक्ट्रिक जो कंडक्शन है वो इम्पॉसिबल है। तो पॉसिबल कहाँ पे होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। तो सॉल्यूशन जो आयनिक कंपाउंड का होता है, द सॉल्यूशन ऑफ स्पेसिफिकली फॉर्म ऑफ द आयनिक कंपाउंड ये दैट इज लाइक ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है they can be easily pass the electric current. So ionic compounds are generally solid state which do not conduct the electricity. सॉलिड स्टेट के अंदर तो इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे नहीं क्योंकि उसके अंदर ऐसे चार्ज पार्टिकल्स है नहीं। तो इफ द आयनिक कंपाउंड्स इन अ फॉर्म ऑफ सॉलिड स्टेट दे कैन नॉट बी पास द इलेक्ट्रिक करंट, बट द मूवमेंट ऑफ आयंस जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सॉलिड के अंदर है वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए दे आर नॉट कंसिडर एज अ गुड कंडक्टिविटी। लेकिन अगर वही पोलर सॉल्वेंट के अंदर वाटर के सॉल्यूशन के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को पास करते हैं तो मूवली फ्रीली इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। So these are the 4 physical properties that can be having as a part of the ionic compound. तो ionic compound की physical property में कंसिडर कर सकते हैं। So ionic compounds के melting point क्यों हाई होता है, क्योंकि ionic compound जो होते हैं वो strong interaction का force होता है वो possess करते हैं, इसलिए large amount of energy generally required to break that kind of the particles which is having in a form of solid। तो इसके compounds के लिए उसका melting point क्या होता है, काफ़ी high होता है। They generally require the very high melting point। तो समझ में आया आयनिक कंपाउंड क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। उसके बाद 2 टॉपिक और हमें डिस्कशन करना है, एक है थर्मिक प्रोसेस, एक ऑर्गेनोलिक एलॉयज। पहले हम डिस्कशन करते हैं थर्मिक प्रोसेस या इसको थर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मिक प्रोसेस और थर्मिक रिएक्शन। जनरली दिस प्रोसेस इज हैविंग इनटू द मेटालिक सब्सटेंसेस, जिसमें हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, लो रिएक्टिव मेटल्स है या मिडल रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स है, उसमें ज़्यादातर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो एक में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको मैंने समझाया था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था कि मोर रिएक्टिव मेटल दैट कैन बी डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, दैट इज अ पार्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। सो
So if two solutions are there, so mostly the more reactive metal that can displace the low reactive metal from that solution, that is called as a displacement reaction. The more reactive metals that displace the less reactive metal from their compounds, like such as the displacement reaction, is called as a highly exothermic. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है इस तरह की पॉसिबिलिटी होती है कि लो रिएक्टिव मेटल को हाई रिएक्टिव मेटल वहाँ से डिस्प्लेस करता है, जिसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन से कहते हैं. सो यहाँ पे जो हीट इन्वॉल्व होती है, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज इन्वॉल्व टू रिमूव दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस, तो मोस्टली द जो मेटल्स हमें मिलते हैं वो मॉल्टन स्टेट के अंदर मिलते हैं. द मेटल्स विच इज जनरली अवेलेबल इनटू द लिक्विड स्टेट. तो इस रिएक्टिव सीरीज को आप क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड थर्मेट रिएक्शन. तो अगर हाईली रिएक्टिव मेटल्स प्रोड्यूस होता है मॉल्टन स्टेट के अंदर, इसलिए इसको आप थर्मेट रिएक्शंस कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं थर्मेट रिएक्शन का, कि आयन का ऑक्साइड है, आयन का ऑक्साइड यानी कि Fe2O3, आयन का ऑक्साइड को अगर आप एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शंस करते हैं, मॉल्टन फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है. तो यहाँ पे जो ये फॉर्मेशन क्या होता है कि मॉल्टन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम को अगर आयन का ऑक्साइड के साथ आप यूज करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट के लिए जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, रेलवे ट्रैक्स के बीच में जो क्रैक्स होते हैं, क्रैक्स को फिल करने के लिए ऐसे स्पेसिफिक मशीन ऑफ पार्ट्स होते हैं जिसके थ्रू हम उसको फिल कर सकते हैं. ये पूरा जो रिएक्शन बनता है इसका थर्मेट प्रोसेस है, थर्मेट रिएक्शन कह सकते हैं. दैट इज अ पार्ट ऑफ द थर्मेट प्रोसेस और थर्मेट रिएक्शन. उसके बाद दो टॉपिक है जिसमें एक एलॉयज आता है और दूसरा आपका कोरोजन के बारे में आता है. तो उसके लिए भी एलॉयज और कोरोजन जो है हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एलॉयज क्या होता है, कोरोजन क्या होता है. तो पहले तो हमें कोरोजन के बारे में समझना है, फिर एलॉयज के बारे में समझना है. तो पहले तो कोरोजन क्या है. कोरोजन के अंदर आप देखते हैं मोस्ट ऑफली आप डेली लाइफ के अंदर ऐसे बहुत तरह के प्रैक्टिकल्सली इन्वॉल्व होते हैं जिसमें कोरोजन हमें डेली लाइफ में दिखता है. जैसे सिल्वर है, सिल्वर आर्टिकल्स दैट बिकम्स ब्लैक आफ्टर सम टाइम. आप देखते हैं कि सिल्वर का कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, इट्स स्लाइटली बिकम्स ब्लैक आफ्टर सम टाइम. कुछ टाइम के बाद वो थोड़ा थोड़ा ब्लैक होने लगता है. तो सिल्वर जो है वो ब्लैक होने लगता है क्योंकि उसको आप एयर के अंदर रहते हैं. व्हेन दैट शुड बी अवेलेबल इनटू द एक्सपेंडेड टू एयर, silver articles that becomes into the black. So this is because it react with the sulfur in the air and it can't be coating with the sulfur, silver sulfide. तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो सल्फर अवेलेबल होता है वो सल्फर के साथ वो रिएक्ट करता है और सल्फर का जो ऑक्साइड होता है जिसको सिल्वर सल्फाइड कहते हैं, वो उसके साथ प्रिपेयर करता है. इसकी वजह से सिल्वर जो है डार्क ब्लैक कलर में होने लगता है. कॉपर का भी रिएक्शन हम देखते हैं. कॉपर जो है दैट रिएक्ट विद द मोरली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड. जो एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होता है जो स्लोली दैट गेट्स टू बी, उसका जो शाइनी ब्राउन कलर होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है. उसी तरह आयन को अगर आप एयर और वाटर के अंदर या फिर एटमॉस्फेयर के अंदर अगर मॉइस्चर्स अवेलेबल इसके साथ आप रखते हैं तो भी वो रेड ब्राउन कलर का होने लगता है, पाउडर फॉर्म में निकलता है. ये सारे जो प्रोसेस होते हैं सारे प्रोसेस को आप कोरोजन कहते हैं. दिस इज द वन ऑफ द पार्ट ऑफ द कोरोजन. जैसे आप नेल को कुछ टाइम के लिए वाटर के अंदर रखेंगे तो नेल में आप देखेंगे रेड ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर होने लगता है. दिस इज द पार्ट ऑफ द कोरोजन. तो कोरोजन जो है ये कैसे आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि एलॉयज का यूज कर सकते हैं. तो क्या है इसका मेथड. तो रस्टिंग ऑफ आयन दैट कैन बी प्रिवेंटेड बाय द पेंटिंग है, या उसके उस पर कलर का पेंट करिए या उसके ऊपर गैल्वेनाइजेशन करिए, ऑयलिंग करिए, एंटी आयोडाइजेशन करिए. तो ऐसे प्रोसेस करेंगे तो डायरेक्टली जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो अवेलेबल है वो डायरेक्टली मेटल के साथ इंप्लीमेंट नहीं करेगा. इसलिए उसका क्लियर अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो यू कैन नॉट बी डायरेक्टली इंप्लीमेंट विद द मेटल, जिसकी वजह से आप रस्टिंग प्रोसेस जो है आयन का वो आप प्रिवेंट कर सकते हैं. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड यूज होता है वो हम एलॉयज का यूज करते हैं. मोस्ट ऑफली द एलॉयज व्हिच इज यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द कोरोजन. तो पहले तो एलॉय क्या है. एलॉय इज व्हाट इट इज अ पार्ट ऑफ मिक्सचर बिटवीन मोर देन टू मेटल और नॉन मेटालिक सब्सटेंस. दो मेटल या नॉन मेटालिक सब्सटेंस को एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं और एक नया सब्सटेंस को आप डिराइव करते हैं जिसकी पूरी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, जिसको आप एलॉयज कहते हैं. So alloys is a method in which improving the properties of metal and that destroy the properties in the metals. metal की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करके नई मेटालिक प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट करना. जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि आयन इज अ मेटल विच इज मोस्टली यूज, वाइडली यूज होता है वो आयन यूज होता है. बट वी कैन नेवर बी सीन आयन इनटू इट्स प्योर फॉर्म. प्योर स्टेट के अंदर आप आयन को नहीं देखते क्योंकि आयन जो होता है हमेशा इम्प्योरिटीज जो है ऑक्साइड का फॉर्म के साथ वो जुड़ा हुआ रहता है. So when it is hot, जैसे आप उसको गर्म करते हैं, so but it is mixed with a small amount of the carbon, जिसके वजह से क्या होता है थोड़ा सा हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग हो जाता है. अगर आप मेटालिक सब्सटेंस को प्योर फॉर्म में लेंगे तो काफ़ी सॉफ्ट होता है. और ऐसे सॉफ्ट मेटालिक सब्सटेंसेस जो होते हैं अलग अलग तरीके के सब्सटेंसेस जो आप बनाते हैं
वो बनाने में यूजफुल नहीं होता। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें थोड़े से दूसरे सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं, जिसके वजह से उस मेटल की प्रॉपर्टीज के अंदर चेंजेस होता है, तो हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बनते हैं। जैसे कार्बन को अपन ऐड करेंगे तो कार्बन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग कैटेनेशन फोर्स इंप्लीमेंटेशन करता है, इसकी वजह से सब्सटेंस काफ़ी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसीलिए अगर आप कार्बन को ऐड करते हैं आयन के अंदर तो स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है वो जनरेट करता है, इसीलिए मेटल्स सब्सटेंसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड हो जाते हैं। सो जैसे आयन है, आयन को अगर आप मिक्स करते हैं निकल क्रोमियम के साथ तो वो एक नया सब्सटेंस बनाता है जिसको स्टेनलेस स्टील कहते हैं। स्टेनलेस स्टील इज अ पार्ट ऑफ द मिक्सचर्स ऑफ आयन। उसके अलावा निकल क्रोमियम जो काफ़ी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होता है, कभी भी कॉरोडेड नहीं होता, नेवर बी रस्टिंग। एल्यूमिनियम। उसके अलावा आयन को अगर कुछ दूसरे सब्सटेंसेस के साथ आप मिक्स करते हैं तो उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं। इनफैक्ट इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी मेटल दैट कैन बी चेंज बाय द मिक्स ऑफ द सम अदर सब्सटेंसेस। कुछ नए नए सब्सटेंसेस को आप मिक्स करेंगे तो हमेशा उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी को वो चेंज करता है। द सब्सटेंस विच इज एडेड इन अ फॉर्म ऑफ मेटल और नॉन मेटल, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, मेटल या नॉन मेटल कोई भी सब्सटेंसेस को आप ऐड करके उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हो और नए सब्सटेंसेस को आप प्रिपेयर कर सकते हो। एलॉय, तो एलॉयज क्या है? एलॉयज इज अ होमोजेनियस मिक्सचर जिसमें दो या दो से ज़्यादा मेटल या नॉन मेटेलिक सब्सटेंसेस को आप ऐड करते हैं जो उसकी एंटायर फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज करता है और एक नया हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग सब्सटेंसेस को क्रिएट करता है। एलॉयज के अंदर आप देखिए एक स्पेसिफिक पार्ट है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो होता है ये इसके अंदर एक स्पेसिफिक एलॉय है जिसको एनालेगम कहते हैं। सो बाय एग्जांपल जिंक और Hg, Zn और Hg इसको एमाग्लेम कहते हैं, वो एक स्पेसिफिक पार्ट होता है मर्क्यूरी का। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए थर्मल प्रोडक्शंस ऑफ हायर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के लिए आप देखें तो एलॉयज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपैरिजन टू द प्योर मेटल्स। तो एलॉयज मोस्ट ऑफली इसी फॉर्म में आप उसका यूज करते हैं जो हायर फॉर्म्स के अंदर। जैसे एग्जांपल लीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं ब्रास। ब्रास जो है एक एलॉयज है जिसमें सिल्वर और कॉपर का मिक्सअप होता है और स्पेसिफिकली आप देखिए तो कॉपर और जिंक का जब आप मिक्सअप करेंगे तो हमें एलॉय बनता है जिसका नाम है ब्रास। उसी तरह ब्रॉन्ज है। ब्रॉन्ज जो होता है ये एलॉय होता है कॉपर और किसका? टीन का। कॉपर और टीन का मिक्सअप करेंगे तो उसी तरह कॉपर, ये सारे जो सब्सटेंसेस होते हैं इलेक्ट्रिकल की गुड कंडक्टिविटी होते हैं या नहीं भी होते हैं, दिस आर द पार्ट ऑफ द एलॉय। बट एलॉय जनरली यूज होता है इस तरह के जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के जो प्रोसेस होती है उसको रिमूव करने के लिए और सब्सटेंसेस को प्योर फॉर्मेशन में हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम एलॉयज का यूज करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है इसको रस्टिंग यानी कि कॉरोजन से प्रिवेंट करने के लिए। जैसे आप देखिए प्योर गोल्ड है, प्योर गोल्ड हमेशा कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट ऑफ गोल्ड होता है। लेकिन ये जो प्योर गोल्ड होता है इट इज अ वेरी सॉफ्ट, और ये जो सॉफ्ट गोल्ड होता है 24 कैरेट का विच इज नॉट यूज टू बी मेड फ्रॉम द ऑर्नामेंट्स, क्योंकि इस पर अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा, फोर्स होगा तो वो अपना शेप को चेंज कर सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि 22 कैरेट का गोल्ड जिसमें 2 ग्राम हम मिक्सर करते हैं कुछ दूसरे सब्सटेंसेस का, इसमें सिल्वर है जिसके वजह से हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए 22 कैरेट का गोल्ड जो है हम ज़्यादातर यूज करते हैं एज अ पार्ट ऑफ द ऑर्नामेंट्स। क्लियर? ये सारे टॉपिक्स दैट इज अबाउट द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आई होप कि ये पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा अबाउट द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कि मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या होती है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या है, दिस आर द टॉपिक्स। उसके अलावा उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके साथ साथ उसको कैसे डिफाइनिंग कर सकते हैं, दिस आर द टॉपिक्स वी डिस्कसिंग इन द चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। So I hope this chapter will be easily understood by you. So we'll be meeting next time. We'll discussing more ahead for the next chapter about the maybe in the science. We'll discussing tomorrow. But I hope that today's lecture will be understood by you. So students are interested with you. Keep revising, keep studying, keep updating your knowledge by using the different mediums of the digital learnings while adapting by the different methods of the studies. So we'll meet you next tomorrow with other topics of the science. Till students take care, stay home, stay safe, and more practice on this type of the questions while writing in your own words. So students take care. We'll meet tomorrow with the other topic of science. Bye.